everyone, welcome back in today's class. My dear students, very successfully we have completed 10th chapter of your NCERT book. So today we are supposed to start with unit 11, that is perimeter and area for class 7th, and the book will be taken as NCERT. Okay. Before going and discuss exercise 11.1, we need to know two basic figures and their perimeter and areas. Fine. This is a square. Square is a figure having all four sides same. Okay, square. This side, let us take, if I take this side 4 centimeter, this all sides will be 4 automatically if I am having a square. Fine. Same in case of rectangle, if I am having a rectangular figure, then the opposite side will be equal. Like if I take this and this side is equal to 6 centimeter, then the opposite side will also be 6 centimeter. If I take this side is equal to 3 centimeter, then this opposite side will be equal to 3 centimeter automatically. That means opposite sides will be same in case of rectangle, likewise. Now, this figure is square, as I told, all sides will be same. Now, I will talk about the perimeter. Perimeter होता क्या है आपके पास? Let us take, I have a photo frame. I have this photo frame. And if somebody asks me to put a tape around the boundary of the photo frame, like if I have to put tape on the boundary of the photo frame only on the boundary, that means मेरे को सिर्फ बाउंड्री पे काम करना है. मेरे को बीच का जो स्पेस है, I do not want to know anything about that space. अभी मेरे को सिर्फ इसकी बाउंड्री पे लेना है, बाउंड्री से ही काम करना है. That means I am talking about its perimeter. अगर किसी फिगर की सिर्फ मेरे को बाउंड्री पे कुछ काम करना है, that means what I have to do, I have to think about the perimeter of that figure. सेम वे अगर मेरे पास कोई नोटबुक है, लेट अस टेक आई हैव अ नोटबुक, और मेरे को क्या करना है उस नोटबुक पे, यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री पे क्या करनी है, टेपिंग करनी है. Okay, if I want to do the taping only at the boundary just for the decoration, if I have to do, that means here also I am talking about the perimeter. ये तो perimeter हो गया अगर सिर्फ मेरे को उसकी बाउंड्री की लेंथ से कंसर्न है. That means here I am talking about the perimeter. But if somebody asks me to paint it properly, अगर मुझे ये बोला जाता है कि मुझे इस पूरे को क्या करना है, पेंट करना है. If I have to paint it properly, the whole space given to me, मेरे को अगर इस पूरे को पेंट करना है. Similarly, अगर मुझे इस कॉपी को पूरे को कवर करना है, if I have to cover this notebook, that means जब मेरे को स्पेस से रिगार्डिंग कोई बात करनी होती है, स्पेस जो अंदर का प्लेस है, if I have to fill that means here I am talking about area. I hope the difference must be clear for you. अगर मेरे को सिर्फ बाउंड्री से काम है, okay, if I have to concern about the boundary, like this is a board, okay, this is white board. अगर मेरे को ये सिल्वर कलर की इस पे ये वाला एडिशनल इसके ऊपर ये टेपिंग ये करना था, if I have to place this एल्यूमिनियम ये जो बॉर्डर है ये लगाना है, एल्यूमिनियम का बॉर्डर, that means मेरे को क्या करना पड़ेगा, I have to find out the perimeter of this rectangle. This is a rectangular board, no? These two sides are same. These two opposite sides are same. Here I am talking about the perimeter. और अगर कोई मुझे बोलता है कि मुझे white board को green board में convert करना है, then I have to paint my green color board. For that coloring कि मेरे को कितना space को color करना पड़ेगा, कितना area को cover करना पड़ेगा, there I am talking about the area. I hope this is clear. दिस इज अ रूम. अगर मेरे को ये रूम की कोई वॉल है, मेरे को कोई बोलता है कि मेरे को इस पर फ्रिल्स लगानी है दिवाली का डेकोरेशन के लिए, आई हैव टू पुट फ्रिल्स ओनली ऑन द बाउंड्री ऑफ द वॉल. अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ फ्रिल्स लगानी है, दैट मीन्स मेरे को किस चीज के कंसर्न बात करनी है, आई नीड टू टॉक अबाउट द पेरीमीटर ऑफ द वॉल. और अगर बोला जाता है कि मेरे को पूरी वॉल को पेंट करना है अपनी को, इफ विद एनी ऑफ द कलर्स, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को अंदर का स्पेस के बारे में बोला जाता है कुछ भी, दैट मीन्स दे वांट टू नो अबाउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर. एंड इफ दे आर आस्किंग अबाउट ओनली द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द perimeter of the figure. I hope this will be more clear कि what do we understand by the perimeter and what do we understand by the area. Okay. This was the main two figures will be needed to know how can we solve the perimeter and area of the figures. Okay, ये तो था perimeter और area का concept. Now square और rectangle का हमें पता लग चुका है.
एरिया और पैरीमीटर का हमें पता लग चुका है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज. नाउ सी, पैरीमीटर अगर मेरे को निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर का मुझे साइड पता होनी चाहिए. दैट विल बी मोर इजी फॉर मी टू फाइंड आउट पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. एरिया इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. और अगर मेरे को एरिया निकालना है कि स्क्वायर का एरिया, अगर मेरे को पेंट करना है किसी स्क्वायर को, तो दैट मीन्स दे वांट टू नो कि मुझे एरिया निकालना है. और एरिया का फॉर्मूला होगा साइड इनटू साइड. उसके लिए भी मुझे एक साइड का पता होना जरूरी है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, ये तो काम हमारा किसका हो चुका है, स्क्वायर का. लेट अस मूव टू आवर रेक्टेंगल. दिस इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के लिए भी आई शुड नो द पैरीमीटर एंड द एरिया. व्हाट इज माय पैरीमीटर हियर? पैरीमीटर के लिए आई मस्ट नो द लेंथ ऑफ द फिगर एंड द ब्रेथ ऑफ द फिगर. और पैरीमीटर के लिए आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा. दैट मीन ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. पहले आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे एज पर द बोर्ड मास रूल. और एडिशन का जो आपके पास नंबर आता है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 2. I hope it is clear for everyone. Let me go for the area. और एरिया के लिए भी मुझे क्या पता होना जरूरी है, I must know for finding the area length and breadth. और इसमें हमें करना पड़ेगा what? Multiply. Here I have to multiply the length and breadth and I will get my area of the rectangle. अच्छा, before starting actually the exercise, जब भी हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, देखो अगर हमें निकालना होता है किसी भी फिगर का पैरीमीटर, if I have to find the perimeter of any of the figure, let me talk about square or rectangle if I am talking about, that means जो यूनिट हमारे पास आती है, अगर आपको लेंथ और जो ब्रेथ गिवन है या जो साइड्स आपको गिवन है, अगर वो मीटर में गिवन है, लेंथ ब्रेथ या कोई भी साइड, इफ दे आर गिवन इन मीटर, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा. इफ लेंथ ब्रेथ एंड साइड आर गिवन इन सेंटीमीटर, देन योर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर एंड किलोमीटर ऑल्सो, वाइस वर्सा. इफ आई हैव टू टॉक अबाउट एरिया, किसी भी फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई ट्रायंगल हो, ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, एनी ऑफ द फिगर, कोई भी फिगर में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको पावर 2 लगानी पड़ेगी. ये दिस इज कॉल्ड m रेज टू द पावर 2 और m स्क्वायर यू मे कॉल इट एज. अगर सेंटीमीटर में गिवन होगा तो आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. अगर किलोमीटर में आपका लेंथ और ब्रेथ गिवन होगा, देन यू कैन यूज किलोमीटर स्क्वायर. रीजन बीइंग, आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है एरिया. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगल, तो लेंथ भी आपके पास लेट अस टेक मीटर में गिवन है, ब्रेथ भी आपके पास मीटर में गिवन है, तो 2 मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर आपको क्या दे देंगे, मीटर रेज टू द पावर 2. इसका मतलब आपके पास 2 मीटर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए हैं. प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स कि पैरीमीटर आपके पास जब भी होगा, पैरीमीटर विल बी टेकन इन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर. और जब भी आपके पास एरिया होगा, एरिया विल बी टेकन एज मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर. Okay, this was a very brief introduction before starting this exercise or chapter we can say. अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कर लेते हैं, जिसके आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि हाउ वी कैन सॉल्व इट. ओके, लेट मी टेल व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज बीइंग गिवन हियर. आपके पास जो शेप गिवन है, द शेप इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. आपने कोई लैंड खरीदी है और लैंड जो आपके पास है वो रेक्टेंगुलर है. उन्होंने बहुत क्लियरली दे दिया, आपने कोई प्लॉट परचेज करना है एंड द शेप ऑफ दैट प्लॉट इज रेक्टेंगल. ओके, लेंथ इज गिवन 500 मीटर. आपके पास उसकी लेंथ गिवन है, दैट इज 500 मीटर. ब्रेथ आपके पास गिवन है, दैट इज 300 मीटर. 300 मीटर आपके पास गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एरिया. तो फिगर आपके पास रेक्टेंगल है और हमें निकालना क्या है, एरिया. फर्स्ट वी शुड मेमोराइज, वी शुड नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. फाइन. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. हमें निकालना क्या था, इन फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द फिगर. सो area of rectangle we may use the formula as length multiply by breadth. So I can use length, मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, that is 500 मीटर. I may use 500. मल्टीप्लाई का साइन आप एज इट इज रखेंगे. ब्रेथ, what is given, breadth, the value of breadth is 300. okay, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो आंसर तो आपका किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया है. ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, तो मैंने मीटर की पावर को 2 लगा दिया. एंड नाउ स्टूडेंट प्लीज बी स्मार्ट इनफ, इनको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना. ओके, अभी आपको पता होना चाहिए. देखो 1 2 3 4 जीरोस आपके पास आएंगी आंसर में, पहले उनको लिख लेते हैं. 1 2 3 एंड 4. ओके, डू नॉट start doing multiplication of these number. This must be done in your mind. Okay,
इट इज अ क्विक मल्टीप्लीकेशन ओनली। आपके पास 2 zeros 500 के पास थे, 2 zeros आपके पास 300 के पास थे। आप दोनों को आप देखते हैं तो टोटल zeros आपके पास कितनी हो जाती है 4, और 5 को 3 के साथ सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू मल्टीप्लाई 5 with 3, दैट इज 154 टाइम्स ऑफ 0। अगर आप इसको बोले तो 1,50,000 आपके पास मीटर स्क्वायर का एरिया आपने परचेज किया है। दिस इज द एरिया यू हैव परचेज्ड। अब क्वेश्चन डजंट एंड हियर, हमारे क्वेश्चन में आगे कुछ और भी पूछता है, हमें अब कॉस्ट भी निकालनी है ना। हमने इतनी लैंड को परचेज किया है, इतना बड़ा एरिया हमने परचेज किया है। अगर हमें वो बोल रहा है, अगर आप 1 मीटर का एरिया परचेज करते हैं, अगर आप इसमें से 1 मीटर का एरिया परचेज करते हैं, वो छोटा सा एरिया अगर आप परचेज करते हैं, तो इसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 10,000 रुपीज देना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, रुपीज 10,000। बट मेरा एरिया तो बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा के लिए तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। दे हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, बट मेरा काम स्मॉल एरिया से नहीं चलेगा। आई हैव टू परचेज अ बिग वन, है ना। मेरे को लैंड ऑफ पी, जो मेरे पास लैंड था, रेक्टेंगुलर लैंड था, मेरे को बड़ा चाहिए था, इतना ज्यादा चाहिए था, एक से तो काम नहीं चलेगा। और उन्होंने मेरे को 1 मीटर का कॉस्ट दिया 10,000, पर मैंने परचेज कितना किया, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो मेरे को तो इसकी कॉस्ट चाहिए, मतलब ये मेरे को कितने का पड़ेगा, 10,000 का तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे पीस की कॉस्ट थी। तो यहाँ पे मेरे को पड़ेगा द कॉस्ट ऑफ लैंड ऑफ, अब मैं अपना एरिया बताती हूँ उनको कि मेरे को कितना एरिया चाहिए था, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000, और मेरे को इतना चाहिए, दैट मीन्स मेरे को ज्यादा का एरिया चाहिए, कम का दे हैव गिवन टू मी। आई विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। अब प्लीज मल्टीप्लाई करने मत बैठना, देखना मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros हम लगा लेते हैं। 4 5 6 7 8 zeros हमने पहले लगा ली, और अब यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 15। इतने रुपए की आपको ये वाली जमीन पड़ेगी जब आप इसको खरीदने जाएंगे, अगर ये कॉस्ट उस जमीन की होती है तो। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। ये इतना पैसा आपको देना पड़ेगा इस लैंड को परचेज करने के लिए। फाइन, I hope this may be clear for you, and if not, please I just recommend you to watch the video again for more clarification. हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क। हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ पार्क का, उसने शेप दिया है हमें, कैसा पार्क है हमारे पास, स्क्वायर पार्क, और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है हमें एरिया। और जब भी स्क्वायर की बात करें, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए किस चीज का पता होना बेहद जरूरी है। तो मुझे किस चीज का पता होना जरूरी है, आई मस्ट नो द साइड ऑफ द स्क्वायर। मुझे साइड का पता होना जरूरी है। अगर मेरे को कोई ये वाली साइड बता दे कि मेरे स्क्वायर पार्क की साइड क्या है, तो मैं एरिया बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। बट उन्होंने हमें साइड डायरेक्टली नहीं दी है, दे हैव गिवन अस पेरीमीटर। उन्होंने हमें दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर उन्होंने हमें दिया है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, द वैल्यू इज 320 मीटर, 320 मीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप देखो किसी भी क्वेश्चन में इफ दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, इफ दे हैव गिवन अस द वैल्यू ऑफ एरिया, तो हम उसी का फॉर्मूला उठाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक बिग हिंट होता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे दे हैव गिवन अस पेरीमीटर, और अगर किसी क्वेश्चन में वो एरिया देते हैं तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है तो हम पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। यहाँ से हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, साइड, तो यही हेल्प कर सकता है, क्योंकि यही चीज हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 4 इंटू साइड। we may use in place of that we may use 4 into side is equal to, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 320 मीटर। हेयर हमें साइड निकालना था। देखो कुछ तो हमारे पास यहाँ पे विजिबिलिटी आई है कि हमें साइड शायद मिलने वाली है ना, कुछ तो हमें लग रहा है अभी यहाँ पे। अब ये साइड के साथ जो 4 है उसको हटाना है यहाँ से, है ना, इसको बिल्कुल खाली छोड़ना है, तो हमारे पास साइड की वैल्यू आ जाएगा।
तो हमें क्या करना है, इस 4 को यहाँ से हटाना है और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और जब इसको इक्वल के इधर शिफ्ट होना पड़ेगा तो अपने साइन को चेंज करना पड़ेगा, अपने साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. And if we are shifting a multiplication sign from left side to right side, what I have to do? I have to convert my multiplication sign into division sign. That means side equals to 320 divided by 4. Just cut it by the table of 4. आपके पास साइड आ जाएगा कितना? साइड आ जाएगा आपके पास कितना? 80 मीटर. यही चाहिए था ना हमें, देखो मिल गया ना हमें. और हिंट किसने दिया? हमें पैरीमीटर ने दिया. बिगर हिंट इज गिवन बाय पैरीमीटर. हमें साइड चाहिए था. निकालना क्या? अभी क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ. उसने साइड नहीं पूछा था, उसने पूछा था एरिया कितना होगा. तो एरिया के लिए हम यूज कर लेंगे एरिया. हमारे पास फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड. और साइड कितना है? 80. 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार साइड को मल्टीप्लाई करते हैं. अब आप प्लीज इनको मल्टीप्लाई ना करें. 1 0 1 0, तो 2 0 हम पीछे लगा लेते हैं पहले. 8 8 64, और एक इसका मीटर और एक इसका मीटर, तो आंसर आएगा मीटर स्क्वायर. दिस इज हाउ वी कैन एंड अप आवर क्वेश्चन नंबर 2 हियर. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन वाज मच easier than the question number 1. I hope you have understood it well also. Let's move to question number 3. Question number 3 says find the breadth. Question number 3, what I have to find out in this question? Different thing they have given. Breadth of the shape of the plot is rectangular. Breadth of rectangular plot. ये मेरे को निकालना है इस क्वेश्चन में. ओके, what they have given to me? The area. They have given me area. Okay, area of rectangular plot. फाइन. ये बहुत बड़ी हिंट आपके पास आने वाली है अभी. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 440 मीटर स्क्वायर. दिस इज द बिगेस्ट हिंट दे हैव गिवन टू मी. अलोंग विद दैट दे हैव गिवन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 22 मीटर एंड दे हैव गिवन मी लेंथ ऑल्सो. वेरी इजी क्वेश्चन. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 22 मीटर, है ना. इन द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली आई टोल्ड यू, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको पैरीमीटर गिवन है या एरिया गिवन है तो हम उसी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. वो हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हिंट होगा, सोर्स ऑफ हमें हेल्प होगा हमारे पास. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यही हमें ब्रेथ की वैल्यू निकाल के देगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी विल यूज, क्योंकि हमारा प्लॉट कैसा है? रेक्टेंगल, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है 440. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. वी विल मेक यूज ऑफ फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज 440. इन दोनों में से मुझे किसी एक का पता होना जरूरी है. निकालना मुझे क्या है? ब्रेथ. देखो लेंथ दे हैव गिवन मी डायरेक्टली, है ना. बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास. व्हाट दे हैव गिवन टू मी? दे हैव गिवन मी लेंथ. हम लेंथ की जगह पे पुट कर लेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 440. मेरे को निकालना है क्या है क्वेश्चन में? ब्रेथ. बट उसके साथ तो ये रखा हुआ है, इसका मतलब आई नीड टू रिमूव इट फ्रॉम हियर. The same process that we have to follow. If I have to take my multiplication side to the right hand side of the question, that means I have to convert multiplication into division. Okay, breadth is equal to 440 divided by 22. It is very easy to cut it because 22 1 is 21, 22 1 is 22, 22 2 is 44. What is the value of breadth with me? It will be 20 meter. Okay, this is the value of breadth. Along with that they are asking me to find its perimeter. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, छोटा क्वेश्चन नहीं था. वो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी जानना चाहते हैं. तो मुझे देखना पड़ेगा कि पैरीमीटर के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है. पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, what I will need for it? I need length and breadth. Both are there with me. What is the formula? 2 into length multiplied by breadth. 2 इंटू लेंथ मेरे को कितना गिवन था? इट इज 22. ब्रेथ मेरे पास कितना निकल के आया? अभी है ना. दोनों चीजें देखो मेरे पास कितना इजीली मिल गई. सो 2 मल्टीप्लाई बाय, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे. मल्टीप्लाई मत करना, पहले 2 को कभी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे. नो, जस्ट यूज बोर्डमास रूल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट. अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 84. एरिया पैरीमीटर निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 84 मीटर ओनली. This will be your answer. These two will be your answer. First they were asking us the breadth and the secondly they were asking about the perimeter of the rectangle.
I hope the question number 3 is also clear for everyone. Without wasting our much of the time, let us shift for question number 4. Question number 4 also like that of question number 3. What is that? Question number 4, the perimeter of the rectangular sheet. In this question देखो question number 4 में उसने सबसे पहले हमें क्या दे दिया? सबसे पहले उसने हमें दिया perimeter. Perimeter of shade rectangular. Perimeter of rectangle they have given us 100 meter. Meter or centimeter? I need to check. It is centimeter. Sorry. It is centimeter. They have given us perimeter. अगर उसने perimeter दिया तो हम इसी का formula use करेंगे. This is going to help us a lot. Okay, the perimeter of rectangular sheet is this. If length is, and next they have given us length of rectangular sheet. Length they have given us 35 centimeter. 35 centimeter. I have to find out what? Find its breadth and find its area. I have to find the breadth as well as I have to find the area. Perimeter given है. I will make use of that formula 2 into perimeter of rectangle. 2 into length plus breadth. और वो किसके equal given है? 100 के equal given है. So 2 into लेंथ और ब्रेथ में से मुझे किसी एक का पता होना जरूरी है. देन ओनली आई कैन सॉल्व इट. और उसने हमें क्या दिया? लेंथ. तो लेंथ के प्लेस पे हम यूज कर लेंगे यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ. और वो किसके इक्वल गिवन है? 100 के इक्वल गिवन है. वो आपके पास 100 के इक्वल गिवन है. हम क्या करेंगे? 35 plus b. We have solved this type of question in the previous chapters and exercises also. ये जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई है क्योंकि मेरे को एक एक करके यहाँ से ब्रेथ के पास जो भी कुछ है उसको यहाँ से रिमूव करना है. This is what I have to do actually here. So if I have to find the value of breadth, first I will remove this 2 from here, then I will remove 35 from here. सबसे पहले मुझे 2 को हटाना है और 2 को हटाने के लिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है. ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई. अगर मेरे को मल्टीप्लाई को शिफ्ट करना है I have to divide it. See this step carefully. अगर मैं इन दोनों को कट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 50. That means 35 plus breadth is equal to 50. Now I have to shift this 35 and if I have to shift a plus sign, that means my plus sign will be converted into minus sign. How? Breadth is equal to 50 minus 35. If I subtract, I will get 15 centimeter. Half of the question is solved. उन्होंने पूछा था breadth क्या होगी rectangular base की, so the breadth will be 15 centimeter. Now they are asking find its area of rectangle, or you may mention rectangular sheet. What is the value? What is the formula of area of rectangular sheet? That is length multiplied by breadth. Length है क्या मेरे पास question में? Yes, here it is 35. Breadth है क्या question में? और अभी तो निकाली हमने 15. So we can multiply 15 5 is 75, 7 15 3 is 45, 45 7 52 centimeter square will be the area. Okay, isn't it similar to question number 3? ये दो चीजें निकालनी थी, हमें ब्रेथ निकालनी थी और एरिया निकालना था. लास्ट क्वेश्चन में एरिया गिवन था, पैरीमीटर और आपसे ब्रेथ निकल पाई थी. My dear student, I hope this all 4 question of this exercise are clear to you. है ना, मैंने कोशिश की है आप लोगों को अच्छा समझाने की, but still अगर आपको कोई difficulty आती है, कोई problem आती है, if you want to say something about the video, you can comment, you can give your suggestion in